हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग भाई। क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग? एम आई ऑडिबल? ओके एवरीबॉडी, माय AV is clear, audio visual is clear. It's okay Amisha, some students will always have some or the other kind of doubts and issues. कल तक ये था कि शेड्यूल क्यों नहीं मिल रहा है, फिर ये था कि वो सब ग्रुप्स क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, फिर ये था कि क्लास यूट्यूब पे क्यों हो रही है. There will be always some kind of doubt, but there are very few students, less than 1%, who have these doubts. Rest all of them are doing good, so that's completely okay. That's completely fine. No need to worry about that. So, good morning, everybody. The lectures on the application will be directly taken on the application. The lectures will be taken directly on the application, on your application, from most probably from 2nd of May. And 2nd of May, as I already have said, that 2nd of May will be the date when you will be asked to come offline, the offline students. एंड उस दिन से जो आपके लेक्चर्स होंगे वो ऐप पे भी होंगे. तो 2nd of June से पहले पहले हम आर्ट एंड कल्चर फिनिश करेंगे अपना. ठीक है, एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? 42 पेजेस के नोट्स बन गए? नहीं बच्चे, गलत है. तो 26 पेजेस में से 42 पेजेस के नोट्स कैसे बन सकते हैं? 26 इन टोटल पेजेस. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. डोंट वरी, डोंट वरी, विल हेल्प. मैम विल लुक एट अ लॉट ऑफ नोट्स टुडे एंड she'll reply to you how you can shorten it further. It's okay, कोई बात नहीं, डरना नहीं है. We'll take care. Okay. हाँ, नोट मेकिंग इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. यस, व्हाई? बिकॉज नाउ द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड. अभी तक आपको लग रहा था अरे सर द प्रोग्राम इज नॉट स्टार्टिंग, मैं कैसे टाइम यूटिलाइज करूं, व्हाट शुड आई डू, राइट? नाउ द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड, सो यू विल रियलाइज दैट इट इज एक्चुअली वेरी टफ, राइट? Very good, very good. See, so some students were asking me, sir, is it compulsory or is it mandatory for us to make notes out of these particular lectures? So let me tell you something. For example, let's say that the GS1 notes that we will provide you are of 400 or 500 pages. Let's for example just take that. पूरा GS1 हम आपको 400-500 पेजेस में खत्म करा भी दे. We'll do the art and culture, इसमें modern भी, post independence भी, world history भी, geography भी, society भी, सब कुछ 500 पेजेस में हम आपको दे भी दे notes का. Now imagine a scenario where you are sitting right after the essay paper, है ना? Think of August 2026. You have your mains. You have just done your essay paper. Please listen to me. मेरी बात सुनो यार, है ना? अपने ज्यादा लिखने से पहले मेरा सुनो. Don't write a lot of comments. Rather listen to what I'm saying. That is more important. Okay. So what I was saying is, think of a scenario where you have just given the essay paper, and now you have to revise the GS1 and the GS2 paper within. आप 9:30, 12:30, 12:30 तक का पेपर आपने निपटाया, आप 1-2 बजे तक घर आए हो. अब अगले दिन आपका सुबह GS1 GS2 दोनों का पेपर है, and you have to revise that. Will you be able to turn these 500 pages on that particular day? Tell me. Tell me. मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर, ऑन डे 1 ऑफ द ओरिएंटेशन मैंने एक बात कही थी, दैट कॉन्कर इज लाइक एन आर्ट एंड only an artist can visualize the entire art in his mind. You know, the audience sitting and enjoying the art will never be able to have it in their head. So what you have to do is, please do what I am saying. Okay, do what I am saying. If I'm telling you that it is important to shorten the notes, if I'm telling you that it is important to break down the notes and shorten them into short pages, then there should not be any question on, सर मैं उसमें ही लिख लूं क्या, मैं पीडीएफ में ही लिख लूं क्या, मैं पीडीएफ को प्रिंट करके लिख लूं क्या? Why? You will not be able to imagine that because you have not, a lot of you have not given mains till now. And now imagine
that these 500 pages are broken down to, let's say, अभी के लिए suppose let's say you do that in 150 pages, है ना? In the next iteration you break it down further to 50 pages. Now think that you've just delivered the essay paper and now you just have to revise 50 pages for the entire GS1 portion. अब बताओ, tell me now. अरे, that is okay. The problem in note making will handle that. You don't have to worry about that. वो problems and all of those will deal, है ना? That's not an issue. उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे. We are here for that. What you have to manage, what you have to do, what you have to take care is that you don't question a lot of the methods, because नहीं तो फिर हमारी गाइडेंस का फायदा क्या रह जाएगा. बात समझ में आई? क्लियर है सबको? Now, some students faced a minor issue of language yesterday. The question was that, sir, please increase the level of English that you are using. So I would like to reassure you on 2 points. Point number 1, yes, I will do that. Point number 2, if at all I'm using some particular Hindi, that is for a normal conversation, or I might be repeating what I just said in English. Okay, so you don't have to worry about that. It's okay, we will provide you. So I see, कुछ चीजें गलती करके ही सीखोगे. You'll commit a few mistakes and then we'll correct you, and only then you will learn. नहीं तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ ना, इसी चीज के, इसी डॉक्यूमेंट के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूं, बट वो किसी काम के नहीं आएंगे. They're useless until unless you make them yourself from the lectures that I'm taking and from the notes that we are giving you. Until unless you do that, they're of no use. Trust me on this. गोपी, बैन कर दूंगा. I'll ban you right away. बात समझ में आई सबको? So whatever I'm telling you, whatever we are teaching you, there's a lot of value addition in the lecture itself. नहीं तो हम बस नोट्स पकड़ा देना यार, इतने तो आपको भी आती है इंग्लिश, है ना? इतनी इंग्लिश तो आपको भी आती है ना कि यू जस्ट टेक आउट नोट्स एंड यू जस्ट रीड देम. फिर हम लेक्चर क्यों ले रहे हैं? Got my point? And see, that is what I'm telling you. That is what I was telling you yesterday. We have received nearly 600 homework copies today. ठीक है भाई, 600 students. समझ में आ गया? 1/3 रह गए. Less than 1/3 students have submitted their homework. And then you come here and ask me, sir, how do we get the edge, sir? Sir, सब तो वही चीज कर रहे हैं. What do we do different? Right? Understood? चलो फिर. Let's begin. Let's continue. We will give you a sample notes today. आपके में से जिसने भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए होंगे, whosoever from you would have made very good notes, we'll give them as a sample good notes, है ना? एक दो बच्चों का हम आज रेफर कर देंगे. Okay, we will do that. Clear है? चले फिर. Let's begin. Okay, I'll not take any more doubts. We will directly begin with the lecture. So yesterday we were done with the basic art and culture and the architecture का काफी सारा portion. ये सब हमने कल निपटा लिया था. अब आपको शायद पढ़ने में भी आसानी आएगी and we will be able to go through them a bit quickly. तो ये सब हमने कल देख लिया था, निपटा लिया था. We were done with all of this, right? Okay, so what we had to start today was from the stupas wala point. So let's begin. Stupas, that's the first thing that we'll be studying today. Now, this was under the heading of postmodern architecture. The postmodern architecture में stupas में क्या देखने को मिला? What do we see differently in the postmodern architecture in stupas? The first point, let me just increase the chat duration, नहीं तो आप लोग रुकोगे नहीं बात करते करते. That is why I switched off the chat yesterday, because I know then you will not be focusing on the lecture.
So if I see any more such random messages, चाहे उसका कोई भी relevance है program से, but if it is not related to what I'm teaching, I'll shut the chat off then and there. ठीक है? Clear? See, I am a very strict guy यार. मैं आपके साथ मजाक करूंगा, हंसी मजाक करूंगा, सब करूंगा, फन करूंगा, but when it comes to studies, I'm very strict. So listen to what I'm saying. चलो फिर let's begin. Okay, so the topic is stupas, and what change did we see in the stupas? We see three kind of changes. One is that the stupas became enlarged, है ना? They were enlarged. उनका जो area है वो increase किया गया. The area was increased. Stupas were expanded with a larger hemispherical dome, है ना? Larger hemispherical dome. कल देखा था ना ये वाला जो dome देख रहे थे हम, इसको और भी बड़ा किया गया. This was further. अरे somebody write in the chat यार that click on live. कितना एक तो लेट आते हैं बच्चे फिर डिस्टर्ब करते हैं. Somebody write in the chat that click on live. They're not able to see the video because you've not clicked on live. Care. The point is the stupas were expanded with larger hemispherical dome. The dome was made larger than before, and additional terrace या मेढ़ी for extra circumambulation. There was a different मेढ़ी that was added. Got it? A terrace ऊपर the above the dome was added. Understood? Then tornas या gateway. Lintel gateways decorated with Buddhist reliefs were added at cardinal positions of the Vedika. जो पूरी वेदिका है इसमें अभी देखोगे ना, these are the torrents that you will see. तो अब इन torrents को हमने क्या कर दिया? These torrents were further done what? They were decorated, है ना? So जो भी Buddhist reliefs है कुछ भी, for example से यक्ष यक्षिणी की कोई इमेजेस हो गई, या फिर फॉर एग्जांपल से बोधिसत्व है, फिर फॉर एग्जांपल से जातका टेल से, फिर एग्जांपल से व्हाइट एलिफेंट, कुछ भी ऐसे एनी बुद्धिस्ट रिलीफ्स वर एडेड एट द कार्डिनल पोर्शन ऑफ द वेदिकास, है ना? गॉट इट? नोटेबल एग्जांपल्स आर बरहूत, बोधगया, साची एंड अमरावती. दे वर फर्दर ऑगमेंटेड ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर. तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये डायग्राम अपने नोट्स में ऐड करके रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स कम टू द रॉक कट आर्किटेक्चर. द केव कन्वर्जन, केव वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बिल्डिंग्स इन्फ्लुएंस्ड बाय contemporary architecture, often with added elements like pillars. तो पहले सिंपल केव हुआ करती थी, सिंपल लोग हुआ करते थे, रॉक कट केव आर्किटेक्चर. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, नाउ द थिंग चेंज्ड एंड व्हाट इट बिकेम प्रॉपर बिल्डिंग्स. लाइक इनके अंदर पिलर. अभी आप जाओगे किसी भी केव को, प्रीवियस टाइम के केव को देखोगे ना, यू विल सी पिलर्स दैट वर एडेड देयर. Numerous caves were carved out in these regions, particularly in Maharashtra for Buddhist monks, जैसे कि भज केव, कोंडन केव्स, पितलकोरा केव्स, अजंता, बेड़सा, नासिक, करली, कन्हेरी. इनमें से कोई भी दो एग्जांपल याद रखोगे, दैट इज इनफ. लिंटल डालते हैं ना घर में, जो बोलते हैं लेंटर डाल रहे हैं, दैट लिंटल, उसको इंग्लिश में एक्चुअली वर्ड लिंटल है. खैर, द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स फॉर चैत्याज एंड विहारास, है ना? तो पहले सिर्फ केव्स थी, अब हम एक्चुअली में उनको और ज्यादा फर्दर ऑगमेंट करने लगे इनटू चैत्याज एंड विहारास. You know very well, Chaitya is for worshipping, Vihara is for living. Simple है. Then royal shrines of the Kushanas, worship of dead rulers. ये शुरू हुआ, है ना? Ruler worship शुरू हुई. The Kushanas practice the worship of deceased rulers to solidify their authority, making rebellion against emperor equivalent to revolt against divine power. The divine origination theory, very important keyword, divine origination theory. कि भाई जो king है, जो ruler है, they are of divine origin. वो directly भगवान के अंश हैं. राइट? सो उनकी वर्शिप शुरू हो गई ड्यूरिंग द कुशाना रूल, द कुशन रूल. श्राइन्स वर एस्टैब्लिश्ड नोटेबली इन द मथुरा एंड द सुर्ख कोटल, जो अभी अफगानिस्तान में है, यहां पे श्राइन एस्टैब्लिश हुई इन्हीं रूलर्स की. राइट? देन द अनदर थिंग दैट वी सी इज Shunga pillars, Heliodorus pillars. The most famous example of Shunga pillar is the Heliodorus pillar at Besnagar, Madhya Pradesh. ये है, this is the diagram for that. ठीक है? Commissioned around 113 BC by Heliodorus, the Greek ambassador to the Shungas. जो Shungas के पास ग्रीस से ग्रीक एम्बेसडर आया था, Heliodorus, उसका पिलर एक हमने कमीशन किया during the Shunga rule. And why is this important for you to remember and learn? This is important for you to remember and learn because the UPSC has already been asking questions, and you have to give diversified examples. You cannot just give example of pillars of the Ashokan period. Okay, I'll further slow down. You cannot just give examples of the Ashokan period pillars. You have to do that from the other pillars as well. So one is very good example is the Heliodorus pillar of Shungas. The pillar features a 7-line Brahmi inscription.
identifying it as Garud Dhwaj, symbolizing Heliodorus' devotion to the Bhagwat cult, a precursor to Vishnu worship. है ना, जो भागवत कल्ट है, जो बाद में आगे जाके गुप्ताज और उन सब पीरियड्स में विष्णु वर्शिप में ट्रांसलेट होता गया, उस के प्रति डिवोशन ऑफ हेलिडोरस was shown through a 7-line Brahmi inscription known as the Garuda Dhwaj. बात समझ में आई? The design, the pillar differs from the modern pillars in size and decoration. It has a reverse lotus capital, garland, geese motifs. It likely once features a Garud sculpture at the top. इसके टॉप पे गरुड़ का स्कल्पचर भी रहा होगा, reflecting its association with the Vasudev shrine या फिर the Garud Dhwaj. Garud Dhwaj है ना, ध्वज मीन्स फ्लैग, गरुड़ फ्लैग, तो ऊपर जहां फ्लैग होना चाहिए था वहां पे गरुड़ होता. Understood the entire concept? Then the next is sculpture. Sculptural art during the period grew significantly, primarily decorating religious buildings. Initially, the Sungas and their contemporaries set the foundation. Later, various rulers के अंडर 3 schools emerge हुए. This is very important. UPSC has already asked question on this. और इस साल या अगले साल या उससे अगले साल कभी भी इसके रिपीट होने के बहुत हाई चांसेस हैं. Very high chance that this will be repeated. Got it? Understood? Let us have a look. Okay, so there were 3 areas in which 3 schools emerged: the Gandhara school, the Mathura school, the Amravati school. These are schools of what? These are schools of basically sculptures, and architecture के अंदर भी sculpture very specifically. So what these, अब remember this particular way of writing differences. हम generally क्या लिखते हैं? For example, if I have to say you ethics और morality के बीच का difference लिखो. And how will you write? You will write ethics here, you will write morality here, you will distinguish it like this, you will write first difference, इसका ये, इसका ये, इसका ये. No, change it. Make a third table here, a third column here, and इसमें लिखो type या basis या context. है ना? For example, definition क्या अलग है, example क्या अलग है, context क्या अलग है. This is how you make a differentiating table. So here you see the similar pattern. तो किस basis पे हम difference कर रहे हैं, and then what is the difference exactly? So we are differentiating on the basis of cultural influence, and the difference is that Gandhara school में there was an amalgamation of Indian, Greek and Western Asian. Mathura was completely indigenous. Amravati was also completely indigenous. So जो Gandhara school है ना, ये थोड़ा सा हुआ उसी region में था, north west region में. Think of India's north and now go west, north west. इस region में the entire Gandhara school developed. बात समझ में आई? Then Mathura school obvious है, मथुरा में develop होगा. Amravati school was in Andhra Pradesh. The main center of the Gandhara school was Jalalabad, Begram, etc. And that of the Mathura was Kankalitala. And that of Amravati was Nagarjuna Konda and Amravati. Obviously Amravati. The ingredients used were, इसमें जो सबसे important था वो grey, blue, mica थी and stucco था. मथुरा स्कूल में रेड स्टोन था एंड अमरावती स्कूल में व्हाइट लाइमस्टोन था. छोटी छोटी चीजें आपके नोट्स में डालनी पड़ेंगी आपको, बिकॉज दिस विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन. रिलीजियस ऑब्वियसली मेनली बुद्धिज्म, इसका तीनों और इसका फिर से मेनली बुद्धिज्म. पैटर्नेज बाय द कुशानास, इसी एरिया में वो रूल करते थे, यहीं पे उनका वो था. स्कूल डेवलप हुआ, दिस वाज आल्सो बाय द कुशानास, और यहाँ पे कुशान थे नहीं तो यहाँ पे कौन थे? सतवाहनास. एंड देन द इक्ष्वाकु रूलर्स आल्सो dominated this particular school of sculpture, या patronaged this particular school of sculpture. Understood? Then depiction of Buddha कैसा था यहाँ पे? अच्छा देखो, यहाँ पे it was very realistic, है ना? एक ग्रीक डेप्री ऐसे, अगर आपको भी इमेज देखोगे तो एक ऐसे शॉल पट्टा टाइप बुद्धा के ऊपर, एक ऐसे डेकोरेटेड पट्टा टाइप उनके, जो अंग वस्त्र जिसको बोलते हैं ना, अंग वस्त्र हिंदी में जिसको बोलते हैं, दैट अंग वस्त्र काइंड ऑफ अ थिंग, है ना? द बुद्धा वाज शोन एज अ ग्रीक डेप्री, वेरी रियलिस्टिक. Whereas here he was very husky, you know, with very Indian kind of features, stout, well built, and they were generally part of narrative art. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे rather than Buddha, there were Jatakas. Example: Bodhisattva sculpture, head of Buddha, and Buddha in meditation. Here it was sculptured application of a Jataka story. Women doing her hair, statue of Kanishka, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है. And here the story of taming of an elephant by the Buddha, ये हो गया पूरा proper जातका. Here it was proper Buddhism. Here it was a mixture of everything and also of all religions. Clear है? सबको समझ में आया? The entire difference between the Gandhara, Mathura and the Amravati school. The postmodern architecture showed a shift from simplicity to artistic richness with diverse regional influences. It laid the groundwork for development of classical Indian temple sites and sculpture. Very important. Very important.
ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा बड़ी लाइन है। इस लाइन को आप बहुत ही ऐसे लाइटली छोड़ दोगे, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। व्हाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज दिस लाइन इज अ प्रॉपर कंक्लूजन टेम्पलेट फॉर एवरी आर्ट एंड कल्चर का आंसर भाई। क्यों इतनी इस लाइन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? व्हाई? Postmodern architecture show a shift from simplicity to artistic richness. From simplicity to artistic richness. What is it showing? The importance of the postmodern architecture with diverse regional influence, the characteristic of the postmodern architecture, and it laid the groundwork for the development of classical and temple styles in the sculpture. The future influence of the postmodern architecture. So, ladies and gentlemen, note it down. A conclusion in the art and culture answer will comprise of three things: उस पीरियड की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, कोमा कैरेक्टरिस्टिक, कोमा फ्यूचर इन्फ्लुएंस। एंड इसको कहीं भी लगा दो, किसी भी पीरियड पे लगा दो, यू हैव अ परफेक्ट कंक्लूजन रेडी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बात समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, अब शायद आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहोगे, तो मैं थोड़ा टाइमर रिड्यूस करता हूं। ठीक है, लेट्स सी कितने डिसिप्लिन में रहोगे। कूल, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट इट। अब कोई भी पीवाईक्यू उठा लेते हैं। लेट्स पिक अप एनी पीवाईक्यू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस पीवाईक्यू। या चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। मैं इस क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ दो। लेट्स कम टू द कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट दैट आई हैव शोन यू। उस टेम्पलेट से इसका कंक्लूजन बना के दिखाओ मुझे। मेक मी अ कंक्लूजन। चोला टेम्पल आर्किटेक्चर की सिग्निफिकेंस, उसकी एक कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, एंड उसका फ्यूचर इन्फ्लुएंस। देखता हूं मैं कौन एक मुझे लाइन बना के देगा अभी के अभी लाइव। अच्छा चोला, चलो बहुत लोगों ने चोला पढ़ा नहीं होगा, अगर तो मेक इट फॉर द आईवीसी वाला पॉइंट इसका बनाओ। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द आईवीसी, इसका छोड़ो, ये सब क्या लिखा है वो छोड़ो। आईवीसी का अर्बनाइजेशन का कंक्लूजन बना के दिखाओ मुझे। क्या क्या लिखोगे? आईवीसी की अर्बनाइजेशन के कंक्लूजन में उसका एक कोई सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, एक कोई मेजर कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्यूचर इन्फ्लुएंस। सर एवरीबॉडी डू इट फॉर आईवीसी। आई एम वेटिंग गाइस, कम ऑन। कोई का? लेट मी ओपन द चैट। मैं स्लो मोड को बंद कर रहा हूं। चलो, give me a conclusion, a proper conclusion for the IVC urbanization के answer with the template that I've just provided you. Do it. Quick. Everybody, come on. I want 600 conclusions right now. एक लाइन में क्या है ये? एक लाइन का कंक्लूजन बना के दो। ठीक है, then the second assignment for you is that you will do homework on similar conclusion framing of the Buddhist stupa art एंड द रॉक कट आर्किटेक्चर। ये आपका होमवर्क है। आप कंक्लूजन फ्रेमिंग करोगे इन दो चीजों पे, बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट पे, रॉक आर्किटेक्चर पे, रॉक कट आर्किटेक्चर पे, इसी चीज का। Okay, let me see. I'm getting a few. Reconciliation featuring plants, construction laid foundation, stone of smart urban design. Very good. Very good, Jasmine. You have to also add a particular characteristic in this. नहीं आशीष, आपने बहुत उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। यू हैव टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेबल, है ना? ये मिथ टू मिस्ट्री ये सब नहीं, मिथ टू हिस्ट्री व्हाटएवर। मेक इट मोर प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेबल। मार्क्स फ्लावरी के नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे कितना रेलेवेंट है। आईवीसी वाज अर्लीस्ट ब्रॉन्ज एज विद फीचर्स लाइक बैक बेक्ड, बेक्ड की स्पेलिंग ठीक लिखो अमरेंद्र,
bricks systematic drainage pattern and arts influences the art of other periods. Okay, ठीक है. IBC has laid down the foundation of a nation upon which not only near empire benefited but also the present nation. Good pilgrimage, good drainage system and stories for granaries and urban planning for future development. ठीक है. Good. IBC offers timeless lessons. It's advanced about planning, sanitation. नहीं इतने सारे थोड़े लिखने थे, इतना बड़ा conclusion लिखना ही नहीं है. It's a 10 marker. The conclusion will be at max of 20 words, maybe shorter than that. Good. कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है. Very good. Understood? So the homework is that you will do 4 conclusions. You will make 4 conclusions. One on the Chola temples, one on IVC ka urbanization, one on the rock cut architecture, and one on Buddhist stupa art. ठीक है, ये 4 कंक्लूजन इसी टेम्पलेट पे बना के लेके आओगे. कल होमवर्क है, 11 बजे से पहले सबमिट करना है. गॉट इट एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? क्लियर सबको? चलिए सर, we are done with the post-Mauryan. Now let's do the Gupta one. The art and architecture from 300 to 600 CE, often called the Golden Age, is celebrated for its political stability and prosperity. और हमारे जो national historians हैं, like Kumar Swamy, emphasizes that the art from this period was indigenous, self-possessed, formal, no foreign influence. The era's artistic expression influenced religions of Hinduism, Buddhism, and Jainism, the 3 prominent religions of that particular time. अब ये ही चीज आपको उठा के इंट्रो में डालनी है ना? दिस इज अ प्रॉपर इंट्रो फॉर द गुप्ता वाला आंसर. अंडरस्टूड? दिस इज अ प्रॉपर इंट्रो फॉर द गुप्ता वाला आंसर. कैसे कर सकते हो इसको? द गुप्ता एरा which existed from 300 to 600 CE has been called by historians like Kumar Swamy as indigenous, self-possessed, formal, and with no influence. And with no foreign influence, right? So this became an introduction. ठीक है? Then, what are the architecture about? The architecture, cave architecture, stupas, sculptures, अलग-अलग करके पढ़ते हैं इसको. Let's break it down. Then temple, ठीक है? तो इसको चारों को फटाफट ब्रेक डाउन कर लेते हैं. Let's read it quickly. Cave architecture, the continuity of earlier traditions, maintain the use of rock cut, continue किया इसको. ठीक है? तो इस टाइम पे जनता caves बनी वगैरह वगैरह. Okay, let me again increase the slow mode. ठीक है. Then the next is emergence of mural paintings. Extensive use of frescoes and murals became a hallmark. Themes of Jataka tales, life of Buddha, celestial beings, well precision. तो ये क्या है? मुराल पेंटिंग्स. ये बस कीवर्ड्स है ना. मुराल पेंटिंग नहीं आ गई. रॉक कट आर्किटेक्चर कंटिन्यू हो गया. मुराल पेंटिंग नहीं आ गई. आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एनहांस हो गया, मोर रिफाइंड, है ना. बाग केव्स वगैरह आ गए. डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर ऑर्नामेंटेशन, है ना. पैनल्स को डेकोरेट करने लगे हम. डोर फ्रेम्स को डिटेलिंग करने लगे. एग्जाम्पल उदयगिरी केव्स. यहाँ पे हमने क्या देखने को मिला? वैष्णव थीम्स, वराह, है ना. जो एक वराह अवतार था ना, वो पैनल पे देखने को मिला. रिलीजियस डाइवर्सिटी, केव्स वर यूज्ड फॉर बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन पर्पसेस. एग्जाम्पल ऑफ अलोरा केव्स. बात समझ में आई? क्या हो गए केव के फीचर? अर्ली ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया. एग्जाम्पल. मुराल पेंटिंग्स नहीं आ गई. एग्जाम्पल. एनहांस्ड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आ गया. एग्जाम्पल. डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर ऑर्नामेंटेशन आ गया. एग्जाम्पल. रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिली. एग्जाम्पल. Understood everybody? So this became the entire thing for Guptas. गुप्ता का केव आर्किटेक्चर. देन देखो, ऐसे तो आपको कैसे याद रखना है इसको? गुप्ता के अंदर एक आया आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर के अंदर एक आ गया आपका सबसे पहले क्या? दिस पर्टिकुलर थिंग, द केव वन. देन एक आ गया स्तूपा, एक आ गया स्कल्पचर, एक आ गया टेम्पल, है ना. फिर यहाँ पे कुछ आर्ट देख लेंगे, यहाँ पे कुछ रिलीजन, यहाँ पे कुछ सोसाइटी. ऐसे करके गुप्ता के पूरे नोट्स रेडी हो जाएंगे. लेट अस हैव अ लुक एट द स्तूपा. डिक्लाइन हुआ स्तूपा का गुप्ता एज में. इससे पहले बहुत ज्यादा बन गए थे. देयर वर लॉट ऑफ स्तूपास बिफोर गुप्ता एंड नाउ came the decline of the Gupta age stupas. The Dhamek stupa at Sarnath is a notable exception. Located near Varanasi, it marks the spot where Buddha delivered his first ever sermon. है ना. सबसे पहला जो sermon बुद्धा का आया वो इसी पर्टिकुलर जगह पे आया. ठीक है. दी धामेक स्तूप. तो इतना ही हम याद रखेंगे इसमें गुप्ताज में, और कुछ नहीं याद रखना है. देन नेक्स्ट कम्स स्कल्पचर. डेवलपमेंट ऑफ द सारनाथ स्कूल हुआ इस टाइम पे, एंड दिस वाज इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मथुरा स्कूल. फिर इसने अपना डिस्टिंक्ट स्कल्पचर स्टाइल डेवलप कर लिया आते आते.
की एग्जांपल क्या है इसका? स्टैंडिंग बुद्धा की इमेजेस देखने को मिली आपको, है ना। एक अभय मित्र ने स्टैंडिंग बुद्धा की इमेज डोनेट करी थी 473 सी। क्या की फीचर्स है हमारे पास सारनाथ गुप्ता स्कल्पचर के? व्हाट आर द की फीचर्स? फेशियल, है ना। फेशियल फीचर्स क्या है हमारे पास? डाउन कास्ट आईज, शार्प नोज, जेंटल स्माइल। जो एक महापुरुष लक्षण दिखते थे वो एब्सेंट होने लगे, जैसे एलोंगेटेड ईयर्स, उच्च निशा, फोरहेड पे एक मार्क बना होता था, ऐसा आपने देखा होगा। तो ऐसे दे यूज्ड टू बी दिस सिंबल ऑन फोरहेड एंड ऑन चेस्ट, इन द मिडल ऑफ द चेस्ट एज वेल। तो ये सिंबल्स गायब होने लगे, है ना। तो ये चेंजेस देखिए आपको बुद्धा स्टैचूज में। Body posture and drapery, it stands in an abhang pose in which body is either tilted left or right, हल्का सा tilted, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा tilted, very light. It is covered in drapery, but unlike the Gandharavans, does not have any folds. जो गांधारा ड्रेपरी थी वो कैसी होती थी? दो मैं आपको जब ड्राइंग बनानी भी है ना, क्वेश्चन में, तो ऐसी ड्रेपरी है ना, इस काइंड ऑफ ड्रेपरी, दिस काइंड ऑफ ड्रेपरी existed, and in the Gupta period the drapery was very simple, ऐसे, ठीक है। तो उसमें फोल्ड्स थे, उसमें फोल्ड्स नहीं थे, वो इंट्रिकेट थी, इंट्रिकेट नहीं थी। Seated Buddha image shares serene features and halo styles with standing figures seated in Padmasan with a preference for Dharma Chakra Mudra, unlike earlier schools. So पहले अभय मुद्रा बहुत ज्यादा होती थी, बाकी मुद्रास होती थी। Here came to be धर्म चक्र मुद्रा, ठीक है। ओके, गॉट इट। अदर एग्जांपल्स क्या हमारे पास? रिवर गॉड एज गंगा, विष्णु एज अनंत शयी। A Gupta period sculpture showing Ganga standing gracefully in Tribhanga posture on a crocodile, symbolizing her watery realm, कि भाई गॉडेस कहाँ खड़ी है? क्रोकोडाइल के ऊपर खड़ी है, तो पूरा वाटर पे उनका कंट्रोल है। Vishnu as Anantashayi, found in the Dashavatar temple of Devgad, this detailed Hindu sculpture shows Vishnu reclining on the multi-hooded serpent Ananta, है ना। तो अनंत शयी, अनंत को राइड करने वाले, उस पर रेस्ट करने वाले। अंडरस्टूड? दिस इज रिगार्डिंग स्कल्पचर। आपको इसमें से कुछ क्या क्या करना है, बस एग्जांपल्स निकालने हैं। दिस एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि गुप्ता एरा में जो कॉइन्स की ब्रिलियंस दिखती है वो बाद में नहीं दिखती। वी डोंट सी द ब्रिलियंस ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट एंड कॉइनेज इन द लेटर टाइम्स, व्हाई? तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि यूपीएससी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि गुप्ता एरा में क्या डिफरेंट हुआ इन द टर्म्स ऑफ स्कल्पचर्स एंड ओवरऑल आर्किटेक्चर? या ऐसा क्वेश्चन एक मैं बना देता हूं, द गुप्ता एरा redefined the Indian architecture, which had a long-term implication discuss, right? So this became a question in itself. तो आपको ये एग्जांपल्स अगर आते होंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा इन गेटिंग एटलीस्ट 8.5 आउट ऑफ 10। अंडरस्टूड? चलो, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू टेम्पल आर्किटेक्चर। Why temple architecture began in the Gupta period? Religious revival, strong patronage of Hinduism, Buddhism, Jainism encouraged the construction of temples. Religious revival हो गया तो टेम्पल आर्किटेक्चर और बेहतर होने लगा। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, वेल्थ allowed rulers and elites to fund large architectural projects, है ना। वेल्थ आ गई लोगों के पास, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हुई इस एरा में, डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, है ना, आसपास बहुत ज्यादा अटैक नहीं हो रहे थे, मटेरियल एडवांसमेंट हुआ, टेम्पररी से आप थोड़ा सा ड्यूरेबल पे आए, स्टोन पे आए। Example is the Shavtar Temple of Devgarh, one of the earliest surviving Hindu temples dedicated to Vishnu, showing early Nagara style architecture of the northern Indian region of the Gupta era. कैसे evolution हुआ? देखो 5 stages में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो सबसे पहले फ्लैट रूफ, है ना, रूफ भी फ्लैट, शेप कैसी? स्क्वायरिश, स्क्वायरिश शेप, फ्लैट रूफ, राइट। द पोर्टिको वाज डेवलप्ड ऑन शैलो पिलर्स, जो पिलर्स भी थे वो कैसे थे? बहुत ज्यादा ब्रॉड और वाइड नहीं थे, बहुत शैलो पिलर्स थे। The entire sculpture was built on a low platform. ऐसा नहीं कि बहुत लंबी सीढ़ियां, नहीं, बहुत छोटी सी सीढ़ियां, very little, very low. Example is the Temple 17 at Sanchi. Second क्या है? Second आया जहाँ पे प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया। These platform were made higher, they were made raised. 2 story टेम्पल देखने को मिलने लगे। So 1 story, 2 story, और इसके नीचे एक रेज प्लेटफॉर्म। कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज, जो प्रदक्षिणा पथ भी था, या ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता था, यहाँ पे कोई कवरेज नहीं थी, इसको भी अब कवर कर दिया। दिस वॉज फर्दर कवर्ड, है ना। द गर्भगृह के चारों तरफ से प्रदक्षिणा पथ होता है, उसको कवर कर दिया। एग्जाम्पल द पार्वती टेम्पल, द नचना कुधारा टेम्पल एट मध्य प्रदेश। देन थर्ड में शिखरा, शिखर आ गए भाई, शिखरा बोल रहा हूं, शिखर आ गए। जैसे ये आपका फर्स्ट स्टोरी, ये आपका सेकंड स्टोरी, इसके ऊपर क्या आ गया? एक लंबा सा शिखर आने लगा।
स्टिल लो एंड कर्वीलिनियर। अभी इस फेज में क्या हुआ, ये जो शिखर थे ये भी बहुत ऊंचे नहीं थे। आगे आप देखोगे एंड यू डू द द्रविड़ स्टाइल, यू सी वेरी ह्यूज शिखर्स, है ना, यू सी वेरी ह्यूज शिखर्स, बट हियर द शिखर्स वर लो एंड कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर टाइप के शिखर थे। इंट्रोडक्शन ऑफ द पंचायत स्कूल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द पंचायतन, पंचायतन क्या होता है, ये एक मेन श्राइन हो गई सर, और इसके आसपास हमारी दो सब्सिडियरी श्राइन इधर, दो सब्सिडियरी श्राइन इधर, तो पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक शिखर भी बना दो कर्वीलिनियर टाइप का, ये हो गया। सो प्लीज मेक दिस डायग्राम एटलीस्ट, एक रफ डायग्राम बना के रखना, ओके। एंड एग्जांपल्स फॉर दशावतारा टेम्पल एट देवगढ़ एंड द दुर्गा टेम्पल एट आईहोल ऑफ कर्नाटका। फोर्थ वाज द मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर, है ना, अभी तक वो थोड़ी स्क्वायरिश थी ना, अब वो थोड़ी रेक्टेंगुलर हो गई, अब थोड़ी रेक्टेंगुलर सी बनने लगी, उसके ऊपर दूसरा ये बनने लगा, है ना। एंड देन देयर वाज अ पिलर, और फिर यहाँ पे एक दो तीन चार ऐसे करके ये पूरा एरिया बनने लगा। The Tey temple in Maharashtra. Then circular temples bane fifth stage में, shallow rectangular projections were introduced. The example is of Manyar Mutt at Rajgir. And UPSC ने question पूछा prelims में, there is only one circular temple in the history that has ever been made. No sir, आपने देखा है पूरी stage आई थी circular temples की तो. Understood? Clear everybody? So these are the 5 stages of evolution of temple architecture in India. Please, you have to remember them. Now let us look at the distinctions between the 3 schools of temple architecture, the Nagara, the Dravida and the Visara. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, और भी डेवलप हुए थे, but they were more regional. They were more regional and these are more of spreaded. तो नगरा स्कूल में क्या देखने को मिलता है हमें, नॉर्थ इंडिया में आता है वो हिमालय से लेके विंध्या तक, कर्वीलिनियर स्पायर कॉल्ड शिखर है ना, कर्वीलिनियर है थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे करके शिखर है, थोड़ा सा कर्वीलिनियर है, और शिखर के ऊपर एक फ्लूटेड डिस्क है अमलक, जिसको ऐसे करके, ठीक है, अबव इट सिट्स अ स्फेरिकल फिनियल नोन एज द कलश, और इसके ऊपर क्या है, कैसे देखोगे आपने, ऐसे 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 करके कलश आता है। सो दिस इज द टावर दैट यू विल सी इन नगर स्कूल, है ना। जो मंडप होते हैं, मंडप क्या है हमारे यहाँ पे, हॉल, है ना, ये आ गई मान लो मेन श्राइन, यहाँ पे मेन श्राइन है, तो उसके सामने बैठने की जगह, दीज आर स्मॉल, है ना, मॉडेस्ट। और जो गर्भगृह है वो मेन शिखर के बिल्कुल अंडर है, ये मेन शिखर हो गया मान लो, तो यहाँ पे गर्भगृह होगा, दिस इज द गर्भगृह, गॉट इट। नाउ कंपेयर इट विद द द्रविड़ा स्कूल। द्रविड़ा स्कूल इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द नेशन, दे आर पिरामिड शेप्ड विद स्टोरेज, है ना। जो यहाँ पे जो शिखर थे उसको साउथ में क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं, द विमानास आर मल्टी स्टोरेड विमानास, क्राउनिंग एलिमेंट ऑफ द विमाना इन ऑक्टेगोनल शेप कॉल्ड शिखर। तो जो यहाँ पे जिसको पूरे को शिखर बोलते थे, वो यहाँ पे विमान के ऊपर आने लगा, तो द विमान वाज वेरी ह्यूज, द विमान वाज वेरी ह्यूज, एंड विमान के ऊपर क्या आया आपका, शिखर आ गया। द विमान वाज पिरामिड शेप्ड, है ना, द विमान वाज अ बिट ऑफ मोर पिरामिड शेप्ड, एंड इसके ऊपर आपका क्या आने लगा, एक शिखर आने लगा लंबा सा ऐसे करके, और इसके ऊपर आपके कलश आए फिर यहाँ पे। The mandap was large, the pillars were elaborate, the garbhagriha was enclosed within a high walled compound. The gateways were also very large. इनके gateways इतने large नहीं होते थे नॉर्थ में, साउथ में the gateways were also very large. Decorative, they were very decorative, rich external carvings, mythological narratives, dead and deities. इनके भी highly ornate थे. They were also good at decorating. है ना? The material used here was of sandstone and granite, and here it was primarily granite and soft stones. The ambulatory passageway was covered, and here they had majorly opened the ambulatory passageway. वही जो प्रदक्षिणा पथ बताया था ना मैंने, यहाँ पे गर्भगृह नीचे और यहाँ प्रदक्षिणा पथ. Sculptures were detailed narrative, and here that was the sculptures were of gods, goddesses, dancers, etc. etc. इसी को वैसारा स्कूल से कंपेयर कर लेते हैं, वो डेक्कन रीजन में आया, कर्नाटका महाराष्ट्र आंध्र वाले रीजन में. अ बेंड ऑफ कर्वीलिनियर एंड पिरामिडिकल फॉर्म्स, ब्लेंड, दोनों का ब्लेंडेड फॉर्म, कभी कर्वीलिनियर कभी पिरामिडल देखने को मिला, कभी दोनों का ब्लेंडेड देखने को मिला. द मंडप्स वर प्रेजेंट बट दे वर नॉट एज ग्रैंड एज दिस बट ग्रैंडर देन दिस, है ना. देन सिमिलर लेआउट, अब पता है मुझे डायग्राम है, मैं थोड़ा सा अपना बता दूं कि एग्जाम में कैसे बनाना है. ठीक है, सिमिलर लेआउट, द गर्भगृह वाज ऑन सिमिलर लाइंस, वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द डायनेस्टी, कि भाई कैसा, कोई गर्भगृह ज्यादा इंट्रिकेट चाहता है, कोई शिखर के नीचे चाहता है, कैसे चाहता है ना. गेटवे अलग अलग थे, मॉडरेट थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे. तो बेसिकली वैसारा स्टाइल में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो जस्ट डू इट बिटवीन दीज, है ना, वैसारा बिटवीन नगारा एंड द्रविड़ा. सो मोर देन नगरा बट लेसर देन द्रविड़ा इज व्हाट इज वैसारा. कभी कवर्ड कभी सेमी कवर्ड, है ना, सैंडस्टोन भी है, और यहाँ पे शिस्ट भी है, ग्रेनाइट भी है, सब कुछ दिखेगा. अंडरस्टूड.
देन वाटर टैंक नॉर्थ में बहुत एब्सेंट है, लेकिन साउथ में इट इज अ वेरी कॉमन फीचर। एंड इवन विसारा स्टाइल में भी प्रेजेंट मिलता है, बट नॉट एज डोमिनेंट, मैंने बताया ना, बिटवीन द टू। ठीक है। द नोटेबल एग्जाम्पल इज ऑफ खजुराहो, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, मुक्तेश्वर टेम्पल, भुवनेश्वर एटसेट्रा, है ना। दैट इन द साउथ इज ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ द तंजावुर, मीनाक्षी टेम्पल विच इज वेरी ब्यूटीफुल। आप मीनाक्षी टेम्पल की फोटो देखो भाई, बृहदेश्वर टेम्पल की फोटो देखो, भगवान पता नहीं मेरा कब मौका मिलेगा जाने का, आई रियली डोंट नो, बट ब्यूटीफुल। And that was the Vesara style you can see in the Hoysala temple of Halebidu या Pattadakal temple of Aihole Badami। ठीक है। डायनेस्टी जिसने प्रमोट किया वो गुप्ताज थे, चंडेलाज थे, गढ़वाल्स थे। Here they were Pallavas, Cholas, Pandas, and Nayakas, and here they were Chalukyas of Badami, Kalyan, and the Rashtrakutas and the Hoysalas। ठीक है। ये देखो, now this is again a very very important point given by the team, बहुत ही ज्यादा important point। बच्चे बोलते हैं सर चोला टेम्पल आर्किटेक्चर आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था उसमें क्या पॉइंट्स में लिखूं, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। अरे ये तो चोला टेम्पल इज सिमिलर टू द द्रविड़ आर्किटेक्चर ना, चोला आर्किटेक्चर इज इक्वल टू द्रविड़ आर्किटेक्चर ओनली ना, उसी एरिया में तो हुआ वो। So that is how you to remember things. So that is how you to link things. You can look at all these styles of architecture। देखो नगरा में अपरेज प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेयर्स बनी है ना, पिलर लगाए गए हैं, शिखर बना, देखो थोड़ा सा वैसा है ना, कर्वीलिनियर। गर्भगृह बिल्कुल टेम्पल वाली के नीचे है। ये सब्सिडरी श्राइन हो गई, ऐसी चार होती है, एक के बीच में हो गया, टोटल 5 हो गई। बात समझ में आ गई। नाउ लुक एट द द्रविड़ स्टाइल। सी वेरी बिग एंड पिरामिड लाइक विमान, उसके ऊपर अमलक है ना, गर्भगृह, मंडप काफी बड़ा है ना, बाउंड्री वॉल काफी बड़ी है, गोपुरम जो गेट में है वो बहुत बड़े है, वाटर टैंक कंपल्सरीली बना हुआ है। बात समझ में आई। सो दिस बिकेम अनदर थिंग। देन और भी कुछ कुछ है, ओडिशा स्कूल है, सोलंकी स्कूल है, देन होयसला स्कूल है, खजुराहो स्कूल है। द होयसला स्कूल डेवलप्ड फ्रॉम नियरली फ्रॉम द वेसारा स्कूल ओनली, तो वो कहीं ना कहीं वहां से डेवलप हो गए हैं। द खजुराहो द चंडेला स्टाइल। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव। इसमें एक बहुत ही शानदार एक स्टार प्लान आया था, सेंट्रल श्राइन बीच में और उसके चारों तरफ और 5 श्राइन्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, और इसमें जो भी बहुत छोटे छोटे से कीवर्ड्स में उनको लिख लेना है। हालांकि यूपीएससी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट स्टिल यू इफ वी हैव टू हैव एन एज, वी हैव टू यूज देम। तो वो छोटे छोटे कुछ 2-3 कीवर्ड लिख लेने में, सारा भी नहीं लिखना है क्या किसका बनता है ये वो कुछ नहीं, कीवर्ड्स बस, किस जगह पाया गया, किस रूलर ने प्रमोट किया और क्या फीचर है, जस्ट दैट। अंडरस्टूड? क्लियर? नायका स्कूल ऑफ द मदुरई, है ना, जस्ट मार्क देम डाउन। All right. So the next thing that we will read today is the Pallava architecture. Okay, so let's begin the Pallava architecture. History of stone architecture in South India began in the 7th century with increasing popularity of the Bhakti cult reflected in the art architecture of the Pallavas. History of stone architecture, है ना, साउथ में। नॉर्थ में थोड़ा पहले शुरू हो गया था स्टोन आर्किटेक्चर, इन साउथ it went nearly the 7th century came with increasing popularity of the Bhakti cult। तो भक्ति कल्ट बहुत ज्यादा आया। अब भक्ति कल्ट जो है it started reflecting in the art and architecture of the Pallavas, and this will be as it is a question, ladies and gentlemen. The Bhakti cult influenced the art and architecture of the temple या फिर overall art and architecture of the Pallava dynasty। और आपको लगेगा सर ये कहां से पूछ लिया, and this is the kind of question that UPSC is asking। यूपीएससी ने पूछा बुद्धिज्म में पालास का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो पूछ सकता है ना कि भक्ति कल्ट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया या फिर कैसे चेंज किया, कैसे इन्फ्लुएंस किया पल्लवा स्कूल को, पल्लवा किंगडम को। अगर कोई भी डायग्राम, इफ एनी डायग्राम यू कैन मेक दैट इज नॉट लुकिंग बैड, that is looking justifiable, then you can definitely make one। The temples developed in the Pallava dynasty reflected the stylistic taste of the individual rulers and can be classified into 4 stages। 4 stages में आएगा। तो पल्लवास में क्या था, जैसा इंसान जैसा रूलर वैसा आर्किटेक्चर, एज द रूलर एज द आर्किटेक्चर। सो महेंद्र वर्मन 600 to 625, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लवा टेम्पल, है ना। यहाँ पे रॉक कट टेम्पल्स बिल्ट हुए, मंडपास बने यहाँ पे, है ना। जैसे नगर स्तर में तो मंडप जो थे वो सिर्फ हॉल हुआ करते थे, यहाँ पे पूरा टेम्पल को ही मंडप टाइप का बनाया गया। These were the first temple type that show the introduction of apsidal garbhagriha and beautifully carved torans above the doorways।
तो ये कुछ कुछ चेंजेस हम देखते जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं. सी आई अंडरस्टैंड दैट दिस माइट लुक टू यू वेरी बोरिंग एंड वेरी, कि सर इतना ज्यादा क्या पढ़ा रहे हो, ये लाइक व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू सी सम थिंग्स. ठीक है. सो एक सेमी सर्किल टाइप का गर्भगृह बनने लगा, सेमी सर्कुलर टाइप का गर्भगृह बनने लगा, है ना, एंड ब्यूटीफुली कार्व्ड तोरन्स. देन एग्जांपल इज केव टेम्पल ऑफ द ममल्लापुरम, मंदगपट्टू, पल्लवरम, महेंद्रवदी. दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट कैन बी रिमेंबर्ड फ्रॉम हियर. ठीक है. Nobody will worry about कि सर ये मुझे याद नहीं हो रहा, I'm not able to remember this, I'm not able to retain this. That is not your work and I'll not address this again. मैंने पहले भी बोला था, अभी ना आपको रिवाइज करना है ये, ना आपको रटना है, ना आपको रिमेंबर करना है, ना आपको रिटेन करना है, कुछ नहीं. अभी आपका सिर्फ फोकस इसी पे होना चाहिए कि ये कुछ कुछ चीज आपके नोट्स में चली जाए और आप आंसर राइटिंग सीख जाओ अपने नोट्स में से आपको कैसे करनी है. दैट्स इट, पॉइंट क्लोज्ड. देन नरसिम्हम नरसिम्ह वर्मन के टाइम पे क्या हुआ? दिस रिप्रेजेंटेड, ऐसा है, डोंट अंडर my or don't take my goodness as my weakness, है ना. Rather than writing the message here that I'm feeling lazy, sir, you should have better left the classroom now. And I promise you, if this is the attitude that you have in the classroom, it is going to be very difficult for you. You really think this is the kind of message that you should be sending between 600 students when they are sitting and going through the class? You are here to study or you are here to listen to me making fun of a history class? खैर. ओके. सो द नेक्स्ट इज द नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे क्या हुआ? यूपीएससी एग्जैक्टली पूछ लेगा भाई. अब जैसे महेंद्र वर्मन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हाई कांट इट बी डन? समझो बात को. व्हाई कांट इट बी डन इन मेंस? और पल्लवास पे तो क्वेश्चन आया भी नहीं अभी तक. पल्लवास बिकम सुपर इंपॉर्टेंट भाई. इन पे क्वेश्चन आया ही नहीं अभी तक मेजर. राइट. तो तो अगर सोचो, सोचो, इफ अ क्वेश्चन कम ऑन द पल्लवास एंड इफ यू आर एबल टू डू दिस, if you're able to do this, if you're able to break it down, क्या मजा आ जाएगा भाई साहब. You're able to break it down into rulers. It would be awesome, right? We will see the PYQ that came in mains on Pallavas, और फिर आप देखना कि आप उसको कैसे एड्रेस करते हो. खैर, Nasim Varman, this represented the second stage of the development of temple architecture in South India. This style is also known as the Mamalla style of temple architecture. The mandapas were now divided into separate rath. The biggest one was called the Dharmaraj Rath. अब यहाँ पे रथ बनने लगे, है ना. जो एक मंडप बनता था पहले, वो मंडप रथ के रूप में होने लगे. एप्साइडल मतलब होता है सेमी सर्कुलर टाइप का. The design of a temple in the Dravidian time style architecture is a successor of the Dharmaraj Rath. जो आपको द्रविड़ स्टाइल देखने को मिलता है ना, वो धर्मराज रथ के बाद से ही आया. कि अच्छा कैसे मल्टीपल श्राइन्स बनने लगी. तो सी, this is how you show, this is a very important line you have to understand. This is a very important line. The design of the temple in the Dravidian style of architecture is a success of the Dharmaraj Rath. This is a very important line of the Pallava architecture is asked. आप पूरा कवर दिखा सकते हो that the entire Dravidian style of architecture was majorly influenced by the Pallava architecture and specifically from Narasimhavarman. In the sculptures, Arjuna's penance at Mahabalipuram is notable. Rath means chariot. Chariot. Rath means chariot. समझे. तो ये लाइंस अगर आप नहीं पकड़ोगे, अगर अगर इफ यू नॉट वेरी 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 अटेंटिव इन द क्लासरूम, हाउ विल यू कैच दीज लाइंस? छूट जाएगा ये. देन राजसिम्हा, द स्ट्रक्चरल फेज.
ये राजसिम्हा से शुरू हुआ, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बनने लगे यहाँ पे, स्टोन मोर्टार का यूज होने लगा, स्टोन को इंडिपेंडेंटली कार्व किया जाने लगा। शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस, उसको याद रखना क्योंकि यूनेस्को से आजकल पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, वो पल्लव आर्किटेक्चर दिखाते हैं पूरा, जो शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम है। कैलाश टेम्पल of Kanchi showcases elements of the Dravida style with the Gopuram, pillars, mandapas, Viman, begun by Rajsimhan, completed by Mahendravarman II, जिस पे क्वेश्चन आया। देन नंदीवर्मन, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ टेम्पल बना या आर्किटेक्चर का पूरा स्कूल बना। इसका एग्जांपल क्या है? वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम, वैकुंठ होगा, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम, बिल्ट बाय परमेश्वर वर्मन सेकंड एंड डेडिकेटेड टू द भागवत रिलीजन। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? चारों पॉइंट्स क्लियर हुए? सबसे पहले आया आपके महेंद्र वर्मन, फिर नरसिम्हा वर्मन, फिर राजसिम्हा, फिर नंदी वर्मन। अब इसके मान लो आपको नोट्स बनाने, तो कैसे बनाने? महेंद्र वर्मन के सामने क्या लिखोगे? रॉक कट, मंडपा, एप्साइडल गर्भगृह, ममल्लापुरम, मंदगापट्टू, ललित अंकुरेश्वर, ललित अंकुरेश्वर, बस डन। कितने कीवर्ड बोले मैंने? लिखो मेरे सामने, महेंद्र वर्मन के सामने क्या लिखो? रॉक कट, मंडपा, एप्साइडल गर्भगृह, ममल्लापुरम, मंदगापट्टू, ललित अंकुरेश्वर। 6 words, Mahendra Varman done. Done. Then move to Narsimha Varman. रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, influence of the Dravida style, Arjuna's penance. 5 phases, keyword, 5 keywords, Narsimha Varman done. Rajasimha, structural phase, freestanding temple, stone carvings, shore temple of Mahabalipuram, Kailash temple of Kanchi. 6 words, Rajsimha done. Nandi Varman, full maturity, Vaikuntha Perumal, Parmeshwarman II, Nandi Varman done. 6 plus 5 plus 6 plus 4. In nearly 20 words, the entire Pallava temple architecture is sorted. Understood? And now you have to learn the linkage as well. You have to learn the linkage as well. इसी चीजों में अब देखो, आपको कभी भी कहीं इंडिपेंडेंटली यू विल नेवर बी एबल टू रिमेंबर एंड लिसन एंड रीड कि भाई भक्ति कल्ट ने कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया पल्लवास को, कहीं इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा, नॉट गेट इट इंडिपेंडेंटली। सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू लिंक इट, यू हैव टू लिंक इट। आपने इसमें क्या चीज पढ़ी? मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी। आई एम टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनालिसिस। स्ट्रक्चरल फेज का सी, दिस वाज द इवोल्यूशनरी फेज, है ना, जहां पे सिर्फ मंडप और रथ बनते थे, है ना, सेपरेट टेम्पल, इंडिपेंडेंट टेम्पल नहीं बन रहे थे। दैट स्टार्टेड इन द राजसिम्हा फेज। देख रहे हो आप, ये एक इंडिपेंडेंट ऐसे टेम्पल नहीं दिख रहा है ना, रथ टाइप का दिख रहा है। ये एक इंडिपेंडेंट टेम्पल नहीं दिख रहा है ना, एक स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है, बस रॉक कट दिख रहा है। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल टेम्पल स्टार्टेड इन राजसिम्हा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ लिसन टू मी, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू। भक्ति कल्ट का कैसे इन्फ्लुएंस पड़ गया भाई पल्लव पे? मान लो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको कुछ डालना है, ठीक है? लेट्स लिसन। अच्छा, पल्लवा में ये कीवर्ड भी लिख लेना ऊपर वाला, ठीक है? राइट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड आल्सो। 7C, भक्ति कल्ट इन्फ्लुएंस, इंडिविजुअल रूलर बेस्ड, ठीक है? राइट दीज 3 keywords आल्सो। सो इन लेस देन 25 keywords यू आर डन। Okay, now listen to me, listen to what I'm saying. So now, for example, see, it asks कि भक्ति कल्ट का कैसे इन्फ्लुएंस पड़ गया in the architecture of Pallavas. Let's suppose the question comes, ठीक है? So how do you have to link? Once you are done with the Bhakti cult, you will understand some of the features of Bhakti cult. ठीक है? You will understand some of the features of Bhakti cult. One of them will be that they propagated the Bhagavad cult, है ना? And once you see here, you will see things like Arjuna's penance. You will see things like Rathas, या रथ। You will also see things like Bhagavad religion को dedicated temples. बात समझ में आई? So you will link that भक्ति कल्ट का Vaishnavite projection onto the temples using the Bhagavad religion or the Arjuna's penance and these things.
Then you will show that as the Bhakti cult matured, the Pallava temple architecture also matured. It started from a very basic rock cut cave architecture in the Mahendravarman period, and it went on to become a full-fledged structure in the Rajsimha phase. Getting my point? Then learn how to make things wider and understandable. For example, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? That a very important चीज बनी मंडप, है ना? Mandap became very important here. So how do you use that? A very important thing in the bhakti cult or the bhakti thing would have been the propagation of bhakti. समझ में आ रही है बात? The propagation. So the mandaps were now used for the propagation of the bhakti movement and the bhakti cult and the bhakti teachings. बात समझ में आई? This is how you have to generate points. ठीक है? Understood everybody? चलो, let's move ahead. Let's do the Chola architecture. चलो सर, चोलास पे आते हैं. Okay. Chola architecture flourishing between the 9th and 13th century in South India. Keywords mark करते जाना. 9th and 13th century in South India, renowned for its grand temples, towering vimanas, intricate stone carvings. Tamil Nadu reflects the Dravida style at its peak. ठीक है? पीछे बोला था ना? We repeated the same thing back. कि भाई, if you know the features of the Dravida style, you will be able to get the features of the Chola style because it is one and the same only. Getting the point? So ये दोनों चीजें आपस में linked हैं. Now let's come to the Chola architecture के features. अच्छा, before that, let's take a break and let's just have water. We'll come back in 2 minutes. Okay, 2 मिनट में आप शुरू करते हैं. Let's just have a break and drink water.
ओके, वी आर बैक। आज थोड़ी खांसी ठीक लग रही है मेरे को। टचवुड। ओके, करिए शुरू। राइट, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चोला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? क्या फीचर्स हैं भाई? ओके, वी आर बैक। आज थोड़ी खांसी ठीक। ओह सॉरी, रिपीट हो गया। ओके, फर्स्ट इज बाउंड्री वॉल्स, हाई बाउंड्री वॉल्स। ठीक है, इतना कीवर्ड हो गया बस, बाउंड्री वॉल्स, हाई। विमान, the vimans rose above the sanctum sectorum, the गर्भ of the temple in the form of a stepped pyramid, है ना, लीनियर स्टेप्ड पिरामिड। बात समझ में आई? तो बाउंड्री वॉल्स हाई, विमान लीनियर स्टेप्ड पिरामिड, गोपुरम हाई एंट्रेंस गेटवे, पंचायतन स्टाइल ये आपको पता ही है, प्रिंसिपल प्लस 4, शिखर ऑक्टेगन क्राउनिंग, अंतराल वेस्टिबुलर टनल जो असेंबली हॉल को गर्भगृह से कनेक्ट करेगी। ऐसा होता है ना, बहुत मंदिरों में देखा होगा ना आपने, दिस इज द गर्भगृह, दिस इज द मंडप, और इसके बीच में एक ऐसे टनल होती है, इससे जाके गुजरना पड़ता है। मंडप ये आपको पता ही है, दिस इज द मंडप, राइट? सो दीज बिकम द फीचर ऑफ द चोला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अलावा स्कल्पचर्स एंड वाटर टैंक, एंट्रेंस पे द्वारपाल मिथुन या यक्ष खड़े होंगे, वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल जो कि एक यूनिक फीचर है चोला स्टाइल का, टेम्पल एनक्लोजर के अंदर ही वाटर टैंक, द्रविड़ा या फिर द पर्टिकुलर चोला आर्किटेक्चर। बात समझ में आई सबको? एंड दिस इज द फीचर अगेन, दिस इज द एंटायर डायग्राम। आपको पता ही है, एक एनक्लोजर वॉल हो गई, ये विमान हो गया, ये गर्भगृह हो गया, ये आपका द्वारपाल जो यहाँ पे द्वारपाल गेट पे खड़े हैं वो हो गए, मान लो ये और ये। ठीक है, ये मंडप, प्रेयर हॉल बोल लो, मंडप बोल लो, ये खाने वाला भोग मंडप, ये एक नॉर्थ मंडप, अलग अलग मंडप होते थे यहाँ पे। फिर ये आपका वाटर टैंक हो गया पुष्करनी का, पुष्करनी वाटर टैंक, ये गोपुरम बहुत हाई वॉल हो गई, ये आपका अर्ध मंडप हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड? देन लेट्स मूव टू द वेरियस फेजेस इनसाइड, वेरियस फेजेस इतना। अच्छा, विमान और शिखर में कोई डिफरेंस नहीं होता यार। इन नॉर्थ इंडिया दे आर जस्ट नेम्ड बाय वन, एंड इन द साउथ इंडिया दे आर नेम्ड बाय अदर। उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, दे आर कर्वीलिनियर इन वन प्लेस, दे आर पिरामिडिकल इन अनदर। बस दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन रिमेंबर एंड लर्न। नाउ लेट्स सी द फेजेस इन द चोला आर्किटेक्चर। सो सबसे पहले 9th से 11th सेंचुरी आदित्य एंड पारांतक फर्मली एस्टेब्लिश्ड ऑफ द द्रविड़ आर्ट, ट्रांजिशन हुआ पल्लवास के रॉक कट से। देखो पल्लवास में हम जा रहे थे ना, फ्रॉम रॉक कट टू इंडिपेंडेंट जा रहे थे ना, वो इंडिपेंडेंट जो है वो फर्दर इट वेंट टू द द्रविड़ा। तो द्रविड़ा तो कंप्लीटली एक प्रॉपर टेम्पल आर्किटेक्चर ही हो गया। देन द्वारपाल आ गए एंट्रेंस पे, है ना, डीटी के साथ साथ किंग की इमेजेस भी आ गई। वेयर एल्स डिड वी सी दिस पर्टिकुलर थिंग? द इमेजेस ऑफ किंग, किंग वर्शिप, हाँ जी, द कुशान्स, वेरी गुड। ओके, कॉम्प्लेक्स सराउंडेड बाय प्रकार एंड स्मॉल गोपुरम्स, छोटे छोटे, है ना, जैसे ये गोपुरम एक यहाँ पे हो गया, एक छोटा गोपुरम इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ऐसे ऐसे गोपुरम दिखने लगे। देन विमान एंड अर्धमंडप, ये मैं ऊपर बता चुका हूं। फिर सेम्बियान महादेवी रिप्लेस ब्रिक टेम्पल्स विद स्टोन, ये एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो ऑफ द दिस पर्टिकुलर पीरियड। सेकंड फेज, द मेजर द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज वाज ऑफ राजराज चोला एंड राजेंद्र चोला। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन भी आ गया है। सर मतलब द चोला आर्किटेक्चर बिलोंग्स द थर्ड स्टेज ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, या यू कैन से दैट। अम्मन श्राइन्स, फीमेल गॉडेस देखने को मिलने लगी, 1000 पिलर्ड हॉल, 1000 पिलर्स इनसाइड अ हॉल। गोपुरम के साइज और बड़े हो गए, बृहदेश्वर टेम्पल देख लोगे तो ऐसे पीछे गिर जाता है इंसान। राजराजा चोलावन का शिवा डेटी है वहां पे, है ना, शिव भगवान जी की, शिव भगवान जी का मंदिर है वो, नटराज के रूप में, त्रिपुरांतक के रूप में। इट इज द टॉलेस्ट विमान इन द एंटायर इंडिया, द टॉलेस्ट विमान इन द एंटायर इंडिया ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल, है ना। दो बड़े बड़े गोपुरम गेटवे देखने को मिलते हैं, अलग अलग फिगर्स बनी हुई देखने को मिलती है, विमान के ऊपर ही फिगर्स देखने को मिलती है। सो देयर आर फिगर्स ऑन द विमान इटसेल्फ। गॉट इट? अंडरस्टूड? स्टोको मीनिंग, स्टोको का अरे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वो प्लास्टर नहीं करा देते जो, दैट इज स्टोको। जो प्लास्टर से कुछ बना देना। नहीं, कुषाण में तो रूलर्स के ही मंदिर बना दिए थे।
यहाँ पे उनको साथ में रखा गया, साथ में दिखाया गया। थर्ड फेज में रेस्टोरेशन हुआ मेजरली इनका, जो खराब हो चुके थे। गोपुरम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए विमान से। व्हील्स, एडिशन ऑफ व्हील्स, हॉर्सेस आउटर वॉल पे सब दिखने लगा, चैरियट्स दिखने लगे। तो ये थोड़ा सा बस ऐसे नॉर्मल सा फेज था। द बिगेस्ट फेज वाज द सेकंड फेज। थर्ड फेज वाज जस्ट ऑफ बिट ऑफ ऑगमेंटेशन, बिट ऑफ चेंज। गॉट इट? देन चोला स्कल्पचर क्या होता है? चोला स्कल्पचर इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स एलिगेंस, रियलिज्म, डिवोशनल एक्सप्रेशन, है ना। ब्रॉन्ज के ऐसे बेहतरीन स्टैचूज। नटराज का सबसे बेहतरीन शानदार स्टैचू माना जाता है, डिपिक्टिंग द शिवास कॉस्मिक डांस। अदर नोटेबल ब्रॉन्ज इंक्लूड फीचर्स ऑफ पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, अपर, सेंट अपर. These sculptures were often used in temple rituals, processions, showing both artistic and religious significance. अरे स्टूको इज नॉट इरोटिक, क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोल दो। स्टूको इज, उसको प्लास्टरिंग करना, उसको सीमेंटिंग करना, स्टूको इज इरोटिक। वाह! मंदिर के विमान के ऊपर इरोटिक फिगर बनाएंगे? कौन जाएगा देखने वहां पे? बनाएंगे तो नीचे बनाएंगे ना, ताकि दिखे कम से कम। ओके, नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ द नटराज स्कल्पचर इंक्लूड। ये देखो, ये पूरा फीचर है इसमें, तो आई डोंट नो जूम करके कितना दिखेगा। राइट हैंड होल्ड्स अ डमरू, जो अपर राइट हैंड है। अपर लेफ्ट हैंड में है फायर, है ना। ये यहाँ पे ये वाला देखो, ये इधर आ गया डमरू, इधर आ गई फायर। ये दिखाता है क्रिएशन, ये दिखाता है डिस्ट्रक्शन। ठीक है। देन लोअर राइट हैंड शोज द अभय मुद्रा, जो प्रोटेक्शन करेगा। लोअर लेफ्ट हैंड टू द रेज्ड फुट, सिंबलाइजिंग साल्वेशन। ये दिखेगा क्या इसमें? देखते हैं एक बार। मेरे देखो उतना क्लियर है, खैर ठीक है। हाँ दिख तो रहा है शायद, नहीं, ठीक है। देन शिवा डांसेस ऑन अ ड्वार्फ, जो कि दिखाता है कि शिवा ने इग्नोरेंस को दबा दिया है ना। अपनी इग्नोरेंस, अपने अहंकार, अपने इग्नोरेंस को कैसे खत्म कर दिया है। फ्लाविंग लॉक्स रिप्रेजेंट द गंजेस रिवर, जो ऊपर से साइड से निकल रहे हैं ना, वो द गंगा रिवर। डिफरेंट इयररिंग्स ऑन ईच ईयर सिग्निफाई द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, जिसको क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। शिवा इज द ओनली गॉड हु इज नोन बाय दैट नेम, अर्धनारीश्वर, है ना। जो अर्धनारी शक्ति है जिसमें, तो एक ईयररिंग से मेल डिपिक्शन, एक ईयररिंग से फीमेल डिपिक्शन। अ स्नेक ऑन हिज आर्म सिंबलाइजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, द कुंडलिनी जागृता। द सराउंडिंग निम्बस ऑफ फायर रिप्रेजेंट्स द इटर्नल साइकिल ऑफ टाइम। ये जो पूरा का पूरा इटर्नल साइकिल ऑफ टाइम आपको यहाँ पे दिख रही है। दिस इज द इटर्नल साइकिल ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? दिस वाज रिगार्डिंग द चोला आर्किटेक्चर। समझ में आ गया भाई सबको? नाउ लेट्स मूव टू द गोपुरम मींस गेटवे। यार ये तो कई बार बताया मैंने, गोपुरम मींस गेटवे। चालुक्यन आर्किटेक्चर, लेट्स मूव टू द चालुक्यन आर्किटेक्चर। सर चोला आर्किटेक्चर में क्वेश्चन आता है, चोला स्कल्पचर। यस यस यस, यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट, डेफिनेटली। आर्किटेक्चर में तो बहुत कुछ मेंशन कर सकते हो, स्कल्पचर इंक्लूड कर सकते हो, बिल्कुल। हमने पढ़ा था ना दैट आर्किटेक्चर इंक्लूड्स द स्तूपा, द स्कल्पचर, द पैलेसेस, द पिलर्स, तो वो सब आर्किटेक्चर के अंदर तो पढ़ रहे थे हम। सो यस डेफिनेटली। Not for gender parity, to be honest. Ardhanarishwar shows that the feminine energy and the male energy, the men energy, the feminine energy, are both comprised within the Shiva. Sorry. है ना? Not मतलब gender parity तो तब आता अगर gender discrimination होता. In the actual core tradition, there is no gender discrimination. Rather मतलब कुछ ना कुछ high ही placed है. तो the Ardhanarishwar is here to show energy. तो basically Shiva is energy का form ना, infinite energy का form. So it is to show energy. So the feminine energy and the male energy both coincide within Shiva. Okay? चलो फिर नेक्स्ट आपका चालुक्यन आर्किटेक्चर। The Chalukya architecture flourished between the 6th and 12th centuries in southern India, blending Dravida and the Nagara. अब बस ये पढ़ लिया आपने, आपका काम हो गया। द्रविड़ा पढ़ लिया, नगरा पढ़ लिया, दोनों को ब्लेंड कर दो जी। Notable for intricately carved temples, rock-cut caves, ornate pillars, it reached its peak in the Badami, Ahol and Pattadakal. इन जगहों पे इसका क्या आया? चालुक्यन आर्किटेक्चर के पीक आई। ठीक है। The three Chalukyas, the Chalukyas of Badami, the Eastern Chalukyas of Vengi, and the Western Chalukyas of Kalyani. These are the three kind of Chalukyas. हमने पढ़ा ये एंशिएंट हिस्ट्री में, बदामी चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास। बदामी चालुक्यास होता है बदामी, जो कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, है ना। पुलकेशिन सेकंड के बाद इनका डिक्लाइन हो गया। देन ईस्टर्न चालुक्यास, आफ्टर द डेथ ऑफ द पुलकेशिन सेकंड, दे इमर्ज्ड
and their capital was at Vengi. And then after the Badami Chalukyas, they were the Kalyani Chalukyas that emerged. ठीक है? Got it? So these are the Chalukyas of Badami, Vengi, and Kalyani. Right? Now, the Chalukyan architecture देख लेते हैं. Chalukyas patronized both Shaivism and Vaishnavism. दोनों Chalukyas में Shaivism है, Vaishnavism. ये हर कीवर्ड को लिंक करना सीखो. Remember how to link each and every keyword, ladies and gentlemen. शैविज्म आ गया, वैष्णविज्म आ गया, तो अब इसको पूरे को लिंक करना है आपको. किससे क्या क्या लिंक हो सकता है? शैविज्म आ गया तो कौन कौन से फीचर्स होंगे, वैष्णविज्म आ गया तो भक्ति के कौन कौन से फीचर्स होंगे, टेम्पल्स में क्या देखने को मिल जाएगा, उतना दिमाग अपना लगाना है. दैट इज द अमाउंट ऑफ थिंग दैट यू टू जनरेट. गॉट इट? नेक्स्ट है आपका चालुक्य आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नगरा एंड द द्रविड़ा एंड हेंस अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द वेसरा आर्किटेक्चर. तो चालुक्य मैंने बताया था ना, वेसरा इज बिटवीन नगरा एंड द्रविड़ा, मोर देन नगरा बट लेसर देन द्रविड़ा. सर कैन वी ऐड कॉइन्स एंड लिटरेचर इन आर्ट? यस, यस यू कैन डू दैट. कॉइनेज पे तो क्योंकि आर्ट होती भी थी ना उस टाइम पे, एंड कॉइनेज इज इटसेल्फ मेटलर्जी, तो मेटलर्जिकल आर्ट तो है ही है. हाँ, स्कल्पचर को आर्ट में भी डालोगे, बट यू कैन आल्सो यूज इट इन द आर्किटेक्चर पोर्शन आल्सो. यू कैन यूज दैट. इट इज नॉट सच अ distinct thing. Now, harmonious amalgamation of the Dravida architectural traditions of South India and the Nagara style of the North India. The Shikhara is pyramidal, similar to the North Indian style, while the Viman has a Dravida-like bulbous and multi-tiered structure. ठीक है, तो शिखर pyramidal हो गया, while the Viman has a Dravida-like bulbous and multi-tiered structure. अच्छा, इसमें क्या होगा? Let me show you once. See, look here. तो बेसिकली क्या होगा? सी, दिस इज द शिखर, दिस एंटायर थिंग इज द शिखर. अब इसमें अलग अलग यहाँ पे आपको विमान देखने को मिलेंगे. ये पूरा एक शिखर देखने को मिलेगा और इसमें छोटे छोटे से विमान भी देखने को मिलेंगे. ऊपर कलश तो रखा ही है, तो इनकी बात कर रहे हैं वो, है ना, इनकी बात हो रही है यहाँ पे. दिस इज बीइंग टॉक्ड हियर दैट शिखरा इज पिरामिडिकल एंड विमान इज बल्बस. तो दिस शिखरा ये पिरामिडिकल टाइप का हो गया थोड़ा सा, एंड द विमान इज बल्बस. Kadamba Shikhar of Chalukya temple showing a northern Shikhar and southern Vimana features. The Kadamba Shikhar, इसका example याद रखना. This is the keyword Kadamba Shikhar. These temples often have a large hall or mandap with pillars and intricate sculpture details. इन पे intricately carved pillars थे, etc. etc. ठीक है. फिर फीचर्स, और क्या फीचर्स देख सकते हो इसमें? मंडपा में दो रूफ आ गई, एक डोमिकल मतलब डोम लाइक और एक स्क्वायरिश. फिर बहुत मिनिएचर डेकोरेटिव पिलर्स आ गए, छोटे छोटे पिलर जो डेकोरेटेड हैं, है ना. एक गड़ग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो डेकोरेटिव पिलर वाला था जिसपे इंट्रिकेट डिजाइन बने हुए थे, दैट वाज गड़ग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. इसमें मोर्टार यूज नहीं होता था. द डोरवे पैनल्स ऑफ चालुक्य टेम्पल्स आर हाईली डेकोरेटेड एंड कंसिस्ट ऑफ पिलास्टर्स, लिंटल एटसेट्रा. सोपस्टोन यूज होने लगा. केव टेम्पल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर टेम्पल डिजाइन, तो दोनों देख लो, आ गया ना. जो पूरा आप देख रहे थे, द एंटायर इवोल्यूशन ऑफ द पल्लवास, वो सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी. मैं वही बोल रहा था दैट रिमेंबर दीज थिंग्स, नोबडी स्टार्ट्स एंड गोज परफेक्ट. सब एक लेवल ऑफ इवोल्यूशन से ही जाते हैं. तो पहले केव स्टाइल टेंपल थे, फिर धीरे 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 स्ट्रक्चर टेंपल आ गए. सेम हैपेंड इन पल्लवास, और द सेम इज हैपनिंग चालुक्यास. The Karnataka Dravidic tradition of architecture initiated by Chalukyas of Badami matured under the hand of the Hoysalas. The Hoysalas. जो कर्नाट द्रविड ट्रेडिशन था, दैट वेंट कंप्लीटली अंडर होयसलास अपने पीक पे. ठीक है, कीवर्ड समझे फटाफट. चलो कैसे क्या क्या कीवर्ड लिखने हैं फटाफट समझे एक बार, ये कर लोगे खुद से. 6th and 12th century, intricately carved temples, rock cut caves, ornate pillars. ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, ये लिख लो. बदामी अहियोल, बदामी चालुक्यास, पुलकेशिन 2, ईस्टर्न चालुक्यास वेंगी, वेस्टर्न चालुक्यास कल्याणी. शैविज्म, वैष्णविज्म, नगरा, द्रविड़ा, वेसारा.
कदम्ब शिखरा ऑफ चालुक्य टेम्पल, या फिर बस कदम्ब शिखरा इतना लिख लो। मंडप, डोमिसल एंड मतलब डोम लाइक एंड स्क्वेरिश, मिनिएचर डेकोरेटिव पिलर्स, गडक स्टाइल, नो मोर्टार, डेकोरेटेड डोरवे पैनल्स, सोपस्टोन, केव एंड स्ट्रक्चर्ड बोथ टेम्पल डिजाइन्स। होयसलास में हो गया इसका मेच्योरिटी। आया समझ में कैसे बनाने नोट्स? आया समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? कुछ और एग्जांपल्स यूज कर लो। बदामी केव्स, विष्णु ऑन शेषनाग, आईहोल, लड़खन टेम्पल, द मारीगुड़ी टेम्पल, द मेगुती जैन टेम्पल। लिख लो, यूज नहीं करना है बट लिख के छोड़ लो कुछ कुछ कीवर्ड्स। विरूपक्ष टेम्पल एट पट्टाडक्कल बाय क्वीन लोक महादेवी, पपनाथ टेम्पल। बस कुछ एग्जांपल्स। समझ में आ गया? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देन कम्स द राष्ट्रकूटास, और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रकूटास पे जाते हैं। सो वी सो, क्या क्या देख लिया हमने? वी सो द मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, फिर चालुक्य, चोला, पल्लवा, एंड नाउ वी आर एट द राष्ट्रकूटास। The Rajkot Empire ruled by the Rajkot dynasty was established in the 8th century CE. किसने? दंते दुर्ग ने। ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या क्या पॉइंट आ जाएगा? अलोरा एंड एलिफेंटा का रॉक कट टेम्पल, रेनोवेशन, अमोघ वर्ष के 5 जैन केव टेम्पल्स अलोरा के, कैलाशनाथ टेम्पल सिंगल रॉक, सबको पता है तो? ठीक है। स्कल्पचर्स ऑफ रावण, शिव एंड पार्वती। एंड ये आर्किटेक्चर का आ गया, बाकी कैलाशनाथ का आ गया आपका फर्दर डिटेलिंग है। कृष्णवन राजपुरा डायनेस्टी के थे, उन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था, जो दंत दुर्ग के बाद आए थे। दंत दुर्ग वाज द फर्स्ट ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, देन उनके उनका सक्सेसर कौन था? कृष्णवन। तो उन्हीं कृष्णवन ने, राष्ट्रकूट डायनेस्टी कृष्णवन ने कैलाशनाथ टेम्पल को कमीशन किया था। ठीक है। और ये वही कन्नड़ द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है जो होयसलास के टाइम पे भी था। द टेम्पल इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, सबको पता है ये। लाइक द लोकेश्वर टेम्पल, इट इज अ रॉक कट कॉम्प्लेक्स, है ना, रॉक कट कॉम्प्लेक्स है ये, सिंगल रॉक से बना है। कृष्णवन ने बनवाया है, कन्नड़ द्रविड़ स्टाइल में बना है। विरूपक्ष टेम्पल एट पट्टाडक्कल का डिजाइन फॉलो करता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर है? बाकी आप स्पेसिफिक जा सकते हो। एलिफेंटा केव्स, दशावतार टेम्पल, एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा इज एन आइलैंड नियर बॉम्बे, ओरिजिनली कॉल्ड श्रीपुरी का तो ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल सा है ये। हालांकि आई डोंट थिंक इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको एग्जांपल पता होने चाहिए। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द स्कल्पचर सच एज नटराज, सदाशिव, अर्धनारीश्वर, महेश मूर्ति, थ्री फेस बस्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, सब यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दशावतार टेम्पल में हिंदू टेम्पल है एक K15 में, बाकी रिलीजन के टेम्पल्स हैं, स्कल्पचर पैनल्स हैं, 10 के 10 अवतार दिखते हैं, विष्णु जी के दशावतार दिखते हैं, हिरण्यकश्यप वाला पूरा का पूरा सीन डिपिक्ट कर रखा है। तो ये आपको बस कुछ कुछ एग्जांपल्स याद रख लेना। आई डोंट थिंक यू नीड टू गो इनटू मोर डिटेल्स, कुछ एग्जांपल याद रख लो। अगर कोई बहुत ही खराब दिन हुआ, बहुत ही खराब पेपर हुआ, तब ऐसा होगा कि बहुत ही कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा। इफ देयर इज अ वेरी लाइक काइंड ऑफ वेरी रॉन्ग डे, only then you will get a question on such specific things, else no issue। लो सर, अब आता है लास्ट पॉइंट
of this particular thing, the significance and legacy of the ancient Indian architecture in the current times. क्या significance है, क्या legacy है? ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है हमें। होयसला टेम्पल कर्नाटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 2023 में। कल्चरल रिवाइवल है हमारा, महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाया गया उज्जैन में। सस्टेनेबल डिजाइन है हमारे, वी आर रिवाइविंग द स्टेपवेल स्ट्रक्चर्स, है ना, रानी की वाव, जाली डिजाइन फ्रॉम हवा महल, इनको रिवाइव कर रहे हैं हम, इनको दूसरी बिल्डिंग्स में यूज कर रहे हैं हम। मॉडर्न इंस्पिरेशन, दी हम्पी आर्ट लैब्स blends the ancient materials of granite and teak with the modern forms of bridges, with the modern forms, and it bridges the old and the new aesthetics. Spiritual relevance क्या है? Ancient temples like the Kashi Vishwanath, Jagannath Puri, है ना, आज तक एक्टिव हैं। They are centers, they are religious centers. Then education and tech का इंटीग्रेशन है ना, VR वर्चुअल रियलिटी वगैरह दिखा रहे हैं हम हम्पी में, ताकि यूथ जो है वो एंगेज हो सके, समझ सके। इंडिया डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आंसर का कंक्लूजन तो ये होना ही चाहिए आपके मेंस में। वन आंसर शुड कंक्लूड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इंडियन हेरिटेज, इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट, द नेशनल आइडेंटिटी इन अर्बन डिजाइन, the Central Vista project in Delhi incorporates Indian motifs, redefines the governance spaces with traditional elements, है ना। जो सेंट्रल विस्टा डिजाइन है वो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स भी यूज करता है, और गवर्नेंस स्पेसेस को उसी हिसाब से, ट्रेडिशनल स्पेसेस के हिसाब से, ट्रेडिशनल डिजाइन के हिसाब से डिजाइन करता है। एंड देन अ ब्यूटीफुल लाइन एट द एंड, for a cherry on the cake, ancient Indian architecture is a testament to the country's rich cultural and spiritual heritage. From rock-cut caves to grand temple complexes, these structures reflect advanced craftsmanship and religious devotion. Their lasting beauty continues to inspire admiration and influence modern design. बात समझ में आई? So these are some of the ways in which you can write a very, 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 very beautiful answer to your questions of ancient architecture. Clear हुआ सबको? Everybody understood what we have read? Got it? So these are the entire, this is what we have covered. काफी सारा आर्किटेक्चर कवर हो गया हमारा. And even if something comes beyond this, even then you should know कि यार मुझे किन लाइंस पे लिखना है, because now it is easier for you ना. आपको शिखर के बारे में लिखना है, मंडप के बारे में लिखना है, टेम्पल के बारे में लिखना है, गोपुरम गेटवे के बारे में लिखना है, डायनेस्टी के बारे में लिखना है, रूलर के बारे में लिखना है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है उसके बारे में लिखना है, किस फिगर का है, गॉड गॉडेस कौन से हैं, द्वारपाल कौन से हैं, यक्ष याक्षी कौन से हैं, शिखर है कि विमान है, कितना बड़ा है, उस पर स्टूको का डिजाइन बना है कि नहीं बना है, वाटर टैंक है कि नहीं है, मंडप कैसा है, बड़ा है छोटा है, मंडप से गर्भगृह के लिए पैसेज है कि नहीं है. A good student will be the one who will be smart in using this particular thing that I've just taught. बात समझ में आई मैंने क्या बोला? So now it is up to you. How much analytical can you make and develop your mind to be? समझ आ रहे हैं ओए प्यारे बच्चों? Are you able to comprehend what I'm teaching? Good. I know it is just the beginning of the program and things might look a bit scattered, might look a bit overwhelming, but धीरे 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 you will settle it down. ठीक है? Just trust what I'm teaching. Just trust the process. है ना? जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, डायमेंशंस बता रहा हूं, इनको प्लीज लिख के रखो. हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ टेम्पलेट्स हैं आपके, है ना. ये टेम्पलेट सबसे ज्यादा काम आएंगे. जब कुछ नहीं काम आएगा, टेम्पलेट्स काम आएंगे. प्लीज रीड देम अगेन. प्लीज टेक दिस लेक्चर अगेन. प्लीज रीड इट अगेन. ए बी टाइगर, आप एक ही मैसेज 10 बार भेजोगे तो मैं कैसे सुनूंगा? आप अभी इसलिए कॉपी सबमिट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी कॉपी टाइमिंग बंद है. वो जो कॉपी टाइमिंग है वो 10:30 से 11 के बीच में है. अब आपने उस टाइम पे सबमिट नहीं किया और यहाँ पे आप बार बार पूछ रहे हो. यू हैव टू रिमेन एक्टिव ना बच्चे.
तो इट्स ओके प्रतिमा, अभी तो ब्लैंक लगेगा ही, अभी मैं लिखवा ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं सिंपल समझा रहा हूं ना। ओके, चलो फिर ठीक है, कल का होमवर्क दे दूं। एक तो all these notes should be now ready, अगर जो आज बनाए थे, if you've already made notes and they are not good, then you make them again, कोई चक्कर नहीं है, मेक देम अगेन, अभी टाइम है, अभी मेहनत करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो मैंने कुछ आपको आज, अच्छा एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन ही लिखते हैं, चलो रुको यार, लेट्स राइट सर्टेन क्वेश्चंस। एक मिनट दो, ठीक है, लेट मी गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस फॉर टुमारो। Okay, let's write the homework, ladies and gentlemen.
ठीक है भाई, क्या क्या होमवर्क है? हाँ जी सर। First homework is that you have to do the notes that you have completed, that of the portion that you have completed till today, है ना? सबको पता है ना, ये वाला जो पोर्शन कंप्लीट हो गया, इसके नोट्स, ठीक है, चाहिए मेरे को कल. Then you have to write three answers. Open book answers हो सकते हैं. You can keep your notes, your books, your Nitin Singhanias, your art and cultures, etc., in front of you. And what will the note that you'll make? The question number one is, though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. Comment. ठीक है. हाँ हाँ, अभी सब अलाउड है आपको. एज इट इज क्वेश्चन मत सर्च करना. डोंट गो एंड सर्च द क्वेश्चन ऑन इंटरनेट. ओके, डोंट डू दैट. एंड इंटरनेट सर्च नहीं करो, rather do your notes search. आप अपने नोट्स अपने बुक्स खोल के रखो, because ultimately you will have your notes and books, not your internet. ठीक है. Question number one. Question number two that you have to write: estimate the contribution of Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of South India. ठीक है. Estimate the contribution of Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of South India. Then the rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss. ठीक है. The first question is of 15 marks and the rest of the two are of 10 marks each. So this is a total of 35 marks का पेपर जो आपको कल तक करके लाना है along with your notes. कर लोगे सर? डन है. This is the homework that you will do. 15 मार्कर जो होते हैं वो 250 वर्ड्स के होते हैं और जो 10 मार्कर होते हैं वो 150 वर्ड्स के होते हैं. अंडरस्टूड? गॉट इट? ठीक है. I'll send this particular file, this particular homework on your group as well. बाकी आप लोग करके लाओ. डन है? सॉर्टेड है सबका? चलिए फिर. We'll discuss this homework tomorrow, but you'll only benefit if you'll do it from home. घर से करके लाओगे तो बेनिफिट होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा. अंडरस्टूड? हाँ, नोट्स पढ़ो, खुद से लिखो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. डन? चलिए फिर. Take care. All the best. Do it. I'll see you tomorrow. Thank you so much for attending the lecture, guys.